Dear friends, this is Dr. Kapil Chaturvedi from Department of Computer Science and Engineering, Sagar Institute of Research, Technology and Science, Sage Group, Bhopal. As we discussed in the last lecture of knowledge management, few topics of first unit where we discuss the introduction of knowledge management. As we are revising the knowledge management topics, so we are taking it fastly, and we discuss the fundamental of knowledge and knowledge management. Also we discuss the cycle of knowledge management, and then we discuss why we require the knowledge management, why we are managing the knowledge. We discuss some points, and also we discuss the various challenges in knowledge management processing, where we discuss security, getting people motivated, keeping up with technology, measuring knowledge, overpowering shared leadership, and keeping accurate data. And today we have to discuss a very important topic of knowledge management. There are two kinds of knowledge is essential and very important in knowledge management. First one is tacit knowledge and second one is explicit knowledge. Both kind of knowledge plays a vital role to fulfill the objective of any organization. So we divide that knowledge into part tacit knowledge and explicit knowledge. We discussed that topic many times. Explicit knowledge is a knowledge which we collect from the outside of the organization, from the different sources like different similar organizations data, also market data, customer data, historical data, and various kind of knowledge which is already available in the literature of the particular organization. And as a fundamental of explicit knowledge, the fundamental of tacit knowledge, we consider to take decision power. When one organization take decision, it requires some experts to make expert decision. So to take decision or the ability to adapt to deal with new and exceptional situations, how we can manage the different situations of the organization, how we can deal with, and here we require the knowledge of the experts. So we say expertise know how, know why, and care why. So they know very well that how to manage that situation, but they always take decision on the basis of explicit knowledge. Here one thing is very important, to make a decision is not a simple thing. When we are starting a new thing, or we are going to do a new work, or a product in the product, or we are producing a new product in the market. If we want to launch a new product in the market, so we require a lots of knowledge and expertise to take decision. Ability to collaborate, to share a vision, to transmit a culture, and a coaching and mentoring to transfer experiential knowledge on one-to-one, face-to-face basis. सो नॉलेज मैनेजमेंट में दो टाइप के नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ पर हम विजडम की बात करते हैं। तो विजडम को गेन करने के लिए दो टाइप के नॉलेज हम वहाँ पर यूज़ करते हैं टॉप लेवल पर, टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। सो द एक्सप्लिसिट नॉलेज होगा जो कि आउटर सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट की जाती है, डिफरेंट सोर्सेज और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस
उस टाइप की जो होंगी वहाँ से कलेक्ट की जाएंगी, या हिस्टोरिकल डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा वहाँ से कलेक्ट होगी एक्सप्लिसिट नॉलेज। और जो टैसिट नॉलेज है वो टैसिट नॉलेज वो नॉलेज होगी जो कि एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। उसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस डिसीजंस, उनसे सीखी गई कुछ चीज़ें, और कुछ एक्सपर्ट लोग जो ये जानते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो वो जिस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, वो जो मैकेनिज्म है, वो जो नॉलेज है, वो टैसिट नॉलेज कहलाएगा। Then the next topic is the evolution of knowledge management from information management to knowledge management. So that whole theory discuss about the our journey from uh, data to knowledge and then knowledge management. So when we know very well that before 15 or 20 years, most of the people discuss just about data, how to manage data. It means they only think that how we can keep a huge amount of raw information, raw data in a computer. आज से 15-20 साल पहले केवल लोग ये सोचा करते थे कि डेटा को कैसे रखना है। कंप्यूटर में 20 GB मेमोरी हुआ करती थी, फिर 40 GB, फिर 80 GB, 120, 500, और अब हम 1 TB तक यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है, उसकी स्टोरेज पे बात होती थी। फिर डेटा को मैनेज करने की बात आई, फिर डेटाबेसेस का एक टाइम आया जहाँ पर डेटाबेसेस मैनेज किए जाते थे, डेटाबेसेस पे काम किया जाता था। और फिर एसक्यूएल का यूज़ किया गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और फिर बात आई जब डेटा भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया और डेटा डिफरेंट काइंड होने लगा, मल्टीमीडिया डेटा हमारे पास आ गया, टेक्स्ट फाइल्स आने लगी, और डेटा जो था वो रॉ डेटा, डेटाबेसेस, मल्टीमीडिया डेटा, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा का जब कलेक्शन एक जगह पर होने लगा, तो वो जो एरा था, वो एरा में एक रिक्वायरमेंट थी एक टेक्नोलॉजी की जिसको कहा गया डेटा माइनिंग। और जब डेटा माइनिंग आया तो डेटा माइनिंग का यूज़ किया गया नॉलेज डिस्कवरी के लिए, क्योंकि अभी जो रॉ डेटा था वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करने से काम नहीं बन सकता, अभी नॉलेज चाहिए फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए। और जब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर टाइम आया नॉलेज को मैनेज करने का। तो ये जो पूरा एक जर्नी है, ये 15-20 साल पहले से नहीं है, ये जर्नी आज से 50-60 साल पहले से है। 1964 जब कंप्यूटर आया तो डेटा आया, और तब से अभी तक डेटा पर ही ओरिएंटेड सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो जर्नी है, ये जर्नी यहाँ पर एवोल्यूशन में डिस्कस किया गया है। डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कब डेटा की बात हुई, कब डेटाबेसेस की बात हुई, कब इंफॉर्मेशन का युग आया, कब हमने नॉलेज को समझा कि नॉलेज हम कैसे फैच कर सकते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम का हमारे पास आया, एक्सपर्ट सिस्टम्स की का हमने बात की। सो बेसिकली जो नॉलेज की बात हुई वो नॉलेज 1996 में पहला कॉन्सेप्ट आया था, जबकि वहाँ पर आप नॉलेज की बात किया करते थे। एप्टोरी एल्गोरिथम आया, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिथम आया। तो ये जो थे ये नॉलेज मैनेजमेंट के फिर नॉलेज की बात, फिर फर्दर जब बात आई 1996 टू 8-10 साल नॉलेज चलता रहा, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, तो फिर नॉलेज मैनेजमेंट का एक टाइम आया जहाँ पर अब उस नॉलेज को भी मैनेज करना पड़ा। तो यहाँ पर कोई एक चार्ट है, वो चार्ट आपको बताता है कि 1969 टू 2000 ये जो एवोल्यूशन था वो किस तरह से प्रोसीड हुआ। ये एवोल्यूशन को हमने यहाँ पर एक स्टेयर डायग्राम में भी समझाया, जहाँ पर आपका डिफरेंट एक स्टेयर है जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो पूरा नॉलेज मैनेजमेंट का माइलस्टोन किस तरह से अचीव किए जाते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। देन फर्दर उसको समझने के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट में हमने एंटिटी एंड इवेंट करके यहाँ पर कुछ चार्ट दिया हुआ है। सो जब आप इस सब को समझोगे और इसको पढ़ोगे तो आपको सफिशिएंट थ्योरी आपके पास हो जाएगी। जब आप एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट को अटेम्प्ट करोगे सो ये सारा थ्योरी आपको हेल्प करेगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, और आपको ये भी समझ आएगा कि डेटा से नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट तक का जो पूरा जर्नी था वो किस तरह से इवोल्यूट हुआ। then knowledge management aspects is the another topic. So
नॉलेज मैनेजमेंट एस्पेक्ट है क्या? So it says that the problem of generating and transferring knowledge between individual across organizations and from each generation to the next are substantially and complex. तो अभी एक चीज़ है कि नॉलेज जनरेट हो गया, नॉलेज को जनरेट करने के बाद बेसिकली उसको यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए हमको उसको एम्प्लॉयज़ में स्प्रेड करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये दिखने में बहुत ईजी लगती है, बट यहाँ पर उसको अप्लाई करना ही अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। सो द एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं नॉलेज मैनेजमेंट के? सो यहाँ पर है आपका आइडेंटिटीज़, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, एक्जिस्टेंसेस, एक्टिविटीज़, मेथड्स, एक्सप्लेनेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। तो ये होल प्रोसीजर है, डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। यदि आप उसको स्प्रेड करने जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर, इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, इन सब प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। सो ये एस्पेक्ट्स हुए। देन फिर आपका है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द नॉलेज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो था वो जब आपने कभी सेट सब्जेक्ट कहीं पढ़ा होगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी हमने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक पिरामिड मॉडल आता है। हमने इसको डिस्कस भी किया है, इस तरह से पिरामिड मॉडल। तो ये जो पिरामिड मॉडल है ये डीएसएस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको जो पिरामिड है, पिरामिड का जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन ये बोलता है कि जो इसका बॉटम पार्ट होता है, ये बॉटम पार्ट सबसे बड़ा होता है, और जो टॉप है, टॉप आपकी जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा नैरो होता है। जब हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो यहाँ पर ये श्रिंक होता जाता है। मतलब ये कि जो सबसे लोअर पार्ट है वो सबसे बड़ा है, फिर मिडिल पार्ट उससे बड़ा है, उससे छोटा है, और सबसे ऊपर वाला पार्ट उससे छोटा है। तो ये जो चीज़ है ये बताती है कि जो हमारा डेटा है, जब डेटा नॉलेज की तरफ ग्रो करता है तो हमारा जो डेटा है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उससे हम इन्फॉर्मेशन फैच करते हैं तो इन्फॉर्मेशन डेटा से कम होती है, और जब हम उस इन्फॉर्मेशन से नॉलेज फैच करते हैं तो नॉलेज का जो अमाउंट होता है वो इन्फॉर्मेशन से भी कम होता है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पिरामिड ही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इस डेटा के बेस पर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के बेस पर नॉलेज, तो नॉलेज जब निकल कर आएगा तो वो जो नॉलेज होगा वो हमारा हेल्प करेगा विजडम के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है एक कंस्ट्रक्शन साइट का, जिसमें बहुत सारी लेबर काम कर रही होती है। बहुत सारे लेबर वहाँ पर अपना काम करते हैं और उनको डेली वेजेस पर या और वेजेस पर पेमेंट की जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पर 1000 ऑफ लेबर काम कर रही हो और उनका डेली वेजेस पर वर्किंग का जो वर्किंग और हैं वो काउंट किए जाते हैं, उनका काम का वैल्यूएशन किया जाता हो और उनका डेली वेजेस पर उनको पेमेंट किया जाता हो। डेटा बहुत ज़्यादा रो हुआ है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पर घंटों में डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और काम जो है वो काम का पेमेंट डेली वेजेस पे किया जा रहा है। अब ये इन लोगों के ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे और वो सुपरवाइजर्स इस काम को मॉनिटर कर रहे होंगे और इस काम को समराइज़ करने के बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट बना रहे होंगे। तो यहाँ पर रिपोर्ट क्या है? डेली वेजेस पेमेंट, कितना काम हुआ, पर डे का कितना काम हुआ। और यहाँ पर मंथली रिपोर्ट बन रही होगी या क्वार्टरली रिपोर्ट बन रही होगी या आपका 6 मंथली रिपोर्ट बन रही होगी या एनुअल रिपोर्ट बन रही होगी कि इतने टाइम में 6 महीने में इस लेबर ने को कितना पेमेंट हुआ और इन्होंने कितना % काम कंप्लीट कर लिया, कितना काम इन्होंने कर लिया है और कितना काम बचा हुआ है। तो ये सारा काम कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो ये जो रो डेटा है, जो डेली वेजेस था, वो 6 मंथली या क्वार्टरली या एनुअल में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेटा कम हो जाएगा। बेसिकली रो डेटा से इन्फॉर्मेशन निकल कर आई। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो सुपरवाइजर्स हैं, वो सुपरवाइजर्स के ऊपर जो इंजीनियर्स होंगे इस लेवल पर, वो इंजीनियर्स सुपरवाइजर्स से जो डेटा मिला उस डेटा को 6 मंथली डेटा को या क्वार्टरली डेटा को एनुअली ऑडिट करेंगे और उससे नॉलेज फैच करेंगे कि कितना पेमेंट करने के बाद, कितना एक्सपेंसेस के बाद, कितना % ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया।
और वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसको देंगे, सीनियर मैनेजमेंट को देंगे। तो वो जो हमारे पास मिडिल लेवल में इंफॉर्मेशन थी उससे कम अमाउंट होगा नॉलेज का। तो ये जो नॉलेज है ये नॉलेज मैनेजमेंट को दी जाएगी और मैनेजमेंट इस नॉलेज का यूज़ करके और टैसेट नॉलेज का यूज़ करके फर्दर डिसीजन मेकिंग करेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डेली वेजेस डेटा था बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर 6 मंथली क्वार्टरली था उससे कम होगा, और यहाँ पर केवल नॉलेज है तो ये बेसिकली 6 मंथली या एनुअल से भी कम होगी। एक इन्फॉर्मेशन की कितना एक्सपेंस करने के बाद कितना % काम हुआ, क्या क्या काम कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर फर्दर डिसीजन मेकिंग की जाएगी कि कितना काम और कराना है, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, कितनी लेबर की और रिक्वायरमेंट होगी, कितने खर्च होगी और रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो है ये पूरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसमें जूनियर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सीनियर मैनेजमेंट काम करेगा। सो ये सारा जो है ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका है, और यही जो फंडामेंटल सारा है ये हमने यहाँ पर थ्योरी में डिस्कस किया है। सो बेसिकली DSS is a part of management information system. So we can also understand that DSS by the help of the diagram, where in the bottom level we have a huge amount of data which will convert in the information, then knowledge, and then that knowledge will be used to get our wisdom. Our discussion here will be the raw data, that the meaning of that raw data, context, it means the extract of meaning or that information, and the wisdom is the process of applying that knowledge among the pupils or among the organization different departments. So this is the decision support सिस्टम। और इसको समझाने के लिए हमने एक टेबुलर डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर हम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट की फंक्शनिंग को, इंफॉर्मेशन यूज़ कौन कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी हमने टेबुलर फॉर्मेट में दिया है। सो व्हेन यू रीड वंस अ थ्योरी and see the diagram, and when you review the tabular format, you have sufficient data to attempt the question of DSS of any kind of question of DSS related. And the next topic is technology applications, organizational concept and process. So KM process refer to way that organization handles knowledge at various stages of its life organization. There are 4 main knowledge management process, and each process comprise 2 sub process. So क्या applications होंगी? Knowledge discovery, knowledge capture, knowledge sharing and knowledge application. Now that is that four points are very understood. First of all, we have to discover the knowledge, then capture the knowledge from discovered knowledge, which is known as to find the inference knowledge. And knowledge sharing is the process of knowledge learning, which is the process of spreading that knowledge among the employees. And the knowledge application is a process where we actually apply and find out the use of that particular knowledge. And the last topic is ethic for knowledge management, and to understand very easily that topic, you will have to focus on that diagram, which says to you that organization value and justice, commitment and responsibility, intellectual ownership and trusteeship and team working moral, and ethic. Then KMP, it means knowledge management processing and socialization, actionalization, combination and internalization. So ये जो एथिक्स मॉडल है, ये एथिक्स मॉडल समझाता है कि आपको इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और जब आप इन एथिक्स को यूज़ करोगे और नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसिंग करोगे तो आप इस नॉलेज को निकाल कर इतनी जगह पर यूज़ कर सकते हो, सोशलाइजेशन के लिए, एक्शनलाइजेशन के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए एंड इंटरलाइजेशन के लिए. So topic is very simple. Once you read that topic, you can easily understand, because you know very well that what is knowledge management, and what is the use and applications of knowledge management. By using
By keeping in mind the example of an organization, you can easily understand the theory of knowledge management. You will just have to practically realize all the things. So that is the first unit of knowledge management, which we discuss. As I told you many times, the faculty of SAGE are working hard to explaining and teaching you each and every time, and providing the notes on the providing the notes on SIRT Bhopal's website, so you can download that note from that site, and by keeping that notes in hard copy, you can easily understand the topics by seeing the video lectures of us. So पढ़ाई करते रहिए, और ये जो नोट्स हैं इनको ध्यान से पढ़ते रहिए. Just you will have to read out these topics after completing the video lecture once, so that you can easily understand all the topics. And I think there is no need to revise this topic once you see the video lecture, and just after that you will have to read out that notes. You can easily remember all the topics. So thanks from the behalf of SAGE and Sagar group of institutions, and पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए. Thank you. Thanks a lot.